ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾ ਗਏ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੰਜੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੁਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ। ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਉਝੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜੂਰ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣੇ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦੇ, ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗੇ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦੇ, ਨਾਨਕ ਬੁਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਇੱਕ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਸ਼ਿਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਗੋਂ ਸੋਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਚਰਜਤਾ, ਵਿਸਮਾਦ, ਰਹੱਸਮੈ, ਵਿਸਮੈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੋ ਵਿਸਮਾਦਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹੱਸ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਚਰਜਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਅਵਸਥਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੋਚੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰੀਕ ਬੁੱਧ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਗਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਗਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਵਿਨਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹੱਸ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਰਹੱਸ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਰਹੱਸ ਦੇ 'ਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਅਚਰਜਤਾ, ਵਿਸਮਾਦ, ਹੈਰਾਨ ਕੁਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇਖਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੱਚਾ ਵਿਨਿਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਾ ਉੜਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੈਸਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਧਰਤੀ ਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੈਸਾ ਨੂਰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੁੱਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਚਮਕਦੇ ਨੂੰ, ਰਹੱਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਬੋਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਆਮ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਹੱਸਮਈ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਰਹੱਸਮਈ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਸਮਾਦ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਹੱਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਤੀਕਸ਼ਣ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੋ ਕਵੀ ਦਾ ਵਿਸਮਾਦ ਅਬੋਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਸੁਬੋਧ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਖੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਵੀ ਕੋਲ ਰਹੱਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਕੋਲ ਵਿਸਮਾਦ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਰਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਅਵਸਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚ ਫਿਰ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਸੰਤ, ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕੋਟੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕੋਟੀ ਸਿਖਰ ਹੈ, ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ, ਉੱਚਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਜਗਤ ਦੇ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਨ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਡਾਨ, ਇਹ ਕੌਤਕ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ। ਕੋਈ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰਬਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਹਾਨ ਹੋਵਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਸਦੀ, ਇਹ ਜੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਸ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੱਸ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਹੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਰਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਹੱਸ ਹੈ। ਰਹੱਸ ਖੋ ਗਿਆ, ਰਸ ਖੋ ਗਿਆ, ਵਿਸਮਾਦ ਖੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਦ ਖੋ ਗਿਆ। ਵਿਸਮਾਦ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ, ਰਹੱਸ ਕਿਉਂ ਖੋਇਆ? ਅਹੰਕਾਰ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਜੋ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਈ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਗਰਮ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਠੰਡੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨਸਪਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੋਲ ਕਵੀ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਰ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਔਰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹੱਸ ਵਿੱਚ ਖੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ। ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਇਲਾਂ ਦੀ ਕੂਕੂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਗਰ ਦਾ ਗਰਜਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚਹਿਚਹਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸਮਾਦ ਨਹੀਂ, ਰਹੱਸ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨਾਦ ਦੀ ਖਲੜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ
जो शब्द, जो आवाज, जो स्वर, जो धुनी साडे ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੋਲਤ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਗਰਜਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਪਵਨ ਦੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਧਰੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਚਹਿਚਹਾਣ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਧੁਨ ਸਭ ਤੇਰੀ ਹੈ। जेता रूप काया तेरी, ये जितना आकार मैनू दिखाई दे रहा है, ये ते तेरी काया है, ये ते तेरा वजूद है। और इस वजूद दे चों जो कुछ भी प्रगट हो रहा है, ये तू ही है। तो साहिब कहते ने विस्माद नाद, ये जो शब्द है, ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, इनू मैं सुनदा ते विस्माद हो जाना। हैरानगी होवेगी विस्माद शब्द ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਵਿਸਮਾਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਕਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਗਊ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਕਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਭੌਂਕਣਾ, ਕਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਗਰਜਣਾ ਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ। हकीकत है जिस दिन किसी ने भी बारीकी नाल सुनिया, बिस्मात तारी हो जाएगा और स्वाद दी गंगा वग तुरेगी। बारीकी नाल ये चारों पासे उमड़दे हुए बोल सुने, आवाज़ां सुनिया, स्वर धुनी नूं सुनिया, तां रहस दी दुनिया चो बंदा खो के रस दी दुनिया विच लीन हो जाएगा, आनंद माणेगा, परम रस। तो साहिब कहंदे ने विस्माद नाद, विस्माद वेद विद्या ज्ञान, अनंत प्रकार का ज्ञान साडे देश दे 64 प्रकार की विद्या मनी गई है। लेकिन इसनूं फिर भी थोड़ा जिहा तकसीम करिए तां पदार्थ का ज्ञान, कला का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, इंज 3 तरह के ज्ञान विच 64 तरह की विद्या आउंदी है। ते साहिब कहते ने जिहड़ी विद्या है, ये जिहड़ा ज्ञान है, इनू भी मैं महसूस जद करदा ते विस्माद दे चला जाना। ज्ञान, सूझ, समझ, ये विद्या, विद्या नू पढ़दे होया जिहड़ा विद्यार्थी विस्माद दे चला जाए वो संत है। ज्ञान हासिल करदियां करदियां जो विद्यार्थी, जो शागिर्द रहस दी दुनिया विच खो जाए, वो रस दी दुनिया विच लीन होके संत दा रुतबा हासिल कर लैंदा है, भगत दा रुतबा हासिल कर लैंदा है। तो साहिब कहंदे ने मैं इस विद्या नू महसूस करके, चारों पासे बिखरे हुए ज्ञान नू महसूस करके विस्माद हो जाना। और ज्ञान हर एक चीज दे छुपया होया है, लैण दी समर्था होवे। दरखत दा एक निक्का जिहा पत्ता भी अपने विच बहुत कुछ छुपाई बैठा है जे असीं उसनू जानना चाहिए। रेत का एक निक्का जिहा जरा अपने विच बहुत कुछ समेट के बैठा है जे असीं खोलना चाहिए। सागर, सूरज की किरण, चंद्रमा, मनुख, बनस्पति, पशु, पंखी, हर एक ज्ञान दे सागर ने। चारों पासे ज्ञान का उमड़िया होया सागर है। मनुख अगर यतन करे तो इस सागर विचों कुछ एक अमृत दे घुट पान करके रहस की दुनिया विच खो सकता है, रस का आनंद माण सकता है। तो साहिब कहंदे ने मैं जद विद्या नू महसूस करदा जो चारों पासे बिखरी पई है, ज्ञान नू महसूस करदा जो जर्रे जर्रे विच मौजूद है, तो मैं विस्माद हो जाना। विस्माद जी, विस्माद भेद। फिर मैं वेखदा जीवां नू और जीवां दे भेद नू, मैं तो विस्माद हो जाना। एक चिड़ी तोते नाल मेल नहीं खांदी, तोता कौवे नाल मेल नहीं खांदा, कौआ इल नाल मेल नहीं खांदी, इल बाज नाल मेल नहीं खांदा, बाज कबूतर नाल मेल नहीं खांदा, और इसे तरीके नाल कबूतर कोयला नाल मेल नहीं खांदा। सिर्फ है आकार का भेद नहीं है, होर भी बारीक भेद है। सारे कुत्ते भी एक जैसे नहीं ने, सारे शेर भी एक जैसे शेर नहीं ने, सारियां बकरियां भी एक जैसियां बकरियां नहीं ने,
सारियां भेड़ां भी एक जैसियां भेड़ां नहीं ने, और सारे मनुख भी एक जैसे मनुख नहीं ने, सारे दरख्त भी एक जैसे दरख्त नहीं ने। साहिब कहते ने जद मैं जीवां नूं वेखदा जो बनस्पति दे च ने, पशु पंखियां दे च ने, कीड़े मकोड़ियां दे च ने, ते फिर मैं इन्हां दे भेद वेखदा। बड़ी दूरी है, आपस दे च कोई मेल ही नहीं। बकरी दा की मेल है गऊ नाल, ते गऊ दा की मेल है शेर दे नाल, ते शेर दा की मेल हो सकदा है हाथी नाल, ते हाथी दा की मेल हो सकदा है घोड़ियां नाल। ये ते बड़ी दूरी है, भेद है। साहिब कहते ने ऐसा जद मैं संसार दे च भेद वेखदा, एक दरिया दा दूसरे दरिया नाल की मेल है, एक पहाड़ दा दूसरे पहाड़ नाल की मेल है, एक ग्रह नक्षत्र तारे सियारे दा दूजियां नाल की मेल है। दूरियां, भेद। इस भेद नूं जद मैं वेखदा तो विस्माद तारी हुंदा है। ये भेद आपां भी रोज वेखदे हैं, चारों पासे सानू दिखाई देंदा है। बंदे बंदे दे च भेद है, मनुख मनुख दे च अंतराल है। सारा जीवन, सारे जीव, महाराज कहंदे ने इन्हां दे विचकार एक भेद दी दीवार है। ये भेद चाहे रंग दा है, रूप दा है, जात दा है, पात दा है, नस्ल दा है, और इस तो इलावा मनुखी दुनिया दे च भाषा दा है, मजहब दा है। गरज के हर जीवां दे च भेद है। रेशम दे कीड़े बिष्टा दे कीड़े जैसे नहीं ने, बड़ा भेद है। जबकि रेशम दा कीड़ा भी कीड़ा है, बिष्टा दा कीड़ा भी कीड़ा है, पर बहुत वड्डा भेद है, बहुत वड्डी आपस दे खड़ी दीवार है। इसी तरीके नाल मनुखां दे तल ते भेद है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग। फिर मैं रूप वेखदा, चारों पासे बिखरिया होया, पंछियां दा रूप, मनुखां दा रूप, पशुआं दा रूप, ते फिर इहदे ते चढ़िया होया मैं रंग वेखदा। कोई किसे रंग दा, कोई किसे रंग दा, ते किसे नूं ते कई कई रंग दे दिते। एक एक मच्छी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने, एक एक पक्षी दे कई कई रंग देखण नूं मिलदे ने। और मनुख अगर थोड़ा जिहा भी धार्मिक है ते बारीक बुद्ध रखदा है, विस्माद तारी होए बिना रह नहीं सकेगा। हेमकुंड दी यात्रा दे समय एक उदासी महात्मा ने रस्ते दे बैंगणा दे एक खेत नूं वेख के ਉਹਦੇ नेत्र सज्जल होए ते बैंगण नूं गलवकड़ी च लै लिया, ਉਹਦੇ बूटे नूं। आम लोकां दी दृष्टि गोचर जद ये घटना हुई तो इंज महसूस होया जैसे कि पागल है, लेकिन नहीं, ओदी रसना तो बोल निकल रहे सन। बल बल जाऊं शाम सुंदर के अकथ कथा जा की बात सुनी। हे अकथ प्रभु, हे श्याम सुंदर, अज तू इस बैंगण विच बड़ा सोहना मुखड़ा दिखाया है। श्याम रंग भी कितना सुंदर हो सकता है, श्याम रंग भी कितना प्रभावित कर सकता है, श्याम रंग भी कितना मन नूं अंदौलत कर सकता है। हे प्रभु, ये तू बैंगणा दे राही दिखाना सी मैनूं। रोज वेखदे हैं बैंगण, लेकिन बैंगण दे विच श्याम सुंदर दे दर्शन कित्थे? इसलिए एक बारीक बुद्ध चाहिए, इसलिए कवि दा हिरदा चाहिए, इसलिए संत दी आत्मा चाहिए। फिर ते बैंगण भी परमात्मा जैसे दिखाई देंगे। कि जे ये बुद्ध नहीं तो हो सकता है परमात्मा भी बैंगणा जैसे ही दिखाई देवे। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं विस्माद रूप, विस्माद रंग। मैं रूप वेखदा, जिथे तक वेखदा ते फिर उन्हां दा रंग वेखदा। हे मेरे अकाल पुरख, विस्माद मेरे ते तारी हो जाता है, मैं ते रहस्य दी दुनिया दे खो जाना। फिर अगां चल के शायद कहते विस्माद नांगे फिरे जंत। हे अकाल पुरख, मैं हैरान हो जाना कि मनुख कपड़े पहनते ने, पशु कपड़े नहीं पहनते, पक्षी कपड़े ही नहीं पहनते, नगन घूमते पे ने, ते उन्होंने अपनी नगनता का कोई बोध भी नहीं है, नगनता ते कोई शर्मसारी भी नहीं है, नगनता का कोई एहसास भी नहीं है। जबकि असी रोज ये नंगे पशु वेखते हैं, कदी विस्माद तारी नहीं होया। बारीक बुद्ध चाहिए। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, विस्माद नांगे फिरे जन, विस्माद पाऊं विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। साहिब कहते ने वगदी हुई पौन नूं वेख के मैं विस्माद की दुनिया दे खो जाना। इसनूं
महान कवि सूरबीर संत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल उस्तत विच इंज बयान करते हैं, कहूँ पवन होए के बहे बेग ऐसे, कहे मोह न आवे कथों ताहे कैसे। हे प्रभु, किधरे तू पवन बन के जद मैनू स्पर्श करके लंघ जाना है, जद मैनू छू करके लंघ जाना है, तो ये छूना मैनू बहुत बड़ा सुख दे जाता है। गर्मी है, पसीना आ रहा है, तो पवन छू के लंघ गई है। एक संसारी नू तो ऐसा महसूस होगा, हवा का झोंका आया है, कुछ ताजगी दे गया। एक कवि नू कुछ होर ढंग नाल महसूस होगा, पर जिहड़ा एक संत है उन्हें तो कहना, हे प्रभु तू अज छू के लंघे है, बड़ा सुख दे गया। तू छू के लंघे है, मेरा पसीना सुख गया है। तू मैनू स्पर्श करके लंघे है, तू मेरे अज गलवकड़ी च लगे है। पवन भी परमात्मा है, जबकि कईयां लई ते हो सकता है परमात्मा भी सिर्फ वगदी हुई हवा ही होवे और कुछ नहीं। संत लई ते वगदी हुई पवन ये ते परमात्मा है। चारों पासे परमात्मा छू रहा है, सानू स्पर्श कर रहा है, किधरे पवन के रूप में, किधरे धरती के रूप में, किधरे सूरज दीयां किरणां के रूप में, किधरे होर अदृश्य तरंगां के रूप में, चारों पासे सानू छू रहा है। पर एक बदकिस्मती है, असी उसनू नहीं छू रहे। असी अखां बंद कर लेने हैं, असी अपने हिरदे दे उत्ते एक बहुत वड्डा पत्थर रख लेने हैं, फिर भी सानू छू रहा है। ਉਹਦੀ स्पर्शता का बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हुई। गुरु जन पास आना, सतसंग विच आना, इसका मुख मकसद जिहड़ा है वो इतना ही है कि हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, वो विवेक बुद्ध मैनू दे कि चारों पासे तू जिहड़ा मैनू छू रहे हैं, इसका मैनू बोध हो जाए, इसका मैनू पता चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मां बाप का हाथ जो सिर ते पे है, अगर बंदा रहस्वादी है तो ऐसा सोचेगा अज ते परमात्मा ने असीस दे दी, अज ते ईश्वर ने असीस दे दी। मां दे रूप दे, पिता दे रूप दे, गुरु दे रूप दे, उस्ताद दे रूप दे असीस ते चारों पासे मिल रही है। पात्रता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, बोध होना चाहिए। तो साहिब कहते ने, हे प्रभु तू किधरे पवन रूप दे मैनू छू रहे हैं, मैनू ताजगी दे रहे हैं, मैनू जिंदगी दे रहे हैं। और इस वगदी हुई पवन नू वेख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद पौन विस्माद पानी। हे प्रभु, वगदे हुए दरियावां नू, बरसदियां हुईयां बूंदां नू, सागर दियां लहरां नू, झीलां नू, और थां थां ते पए पानी नू ते बुझा रहे प्यास ये पानी, मैं तो विस्माद हो जाना। शरीर दे ये पानी, हे प्रभु मैं तो रहस दी दुनिया च खो जाना। ये पानी असी वेखते हैं, जैसे बारीक बुद्धि प्राप्ति होगी, पानी पानी नहीं दिखाई देगा। पानी प्रभु अकाल पुरख दा रूप दिखाई देगा। हकीकत है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते हैं, कहूँ फूल होए के भले राग फूले। हे प्रभु, कमाल दी गल है, किधरे मेरे सामने तो फुल के खड़े हैं, फुल्लां दी तरह फुल के खड़ा है, फुल्लां दे च ऐसा सोपन, ऐसी कोमलता। तू इतना कोमल है, तू इतना सुंदर है, तू इतना सुगंधित है। कहूँ फूल होए के भले राग फूले, कहूँ भंवर होए के भली बात भूले। हे प्रभु, मैं तो एक होर कोतक वेख के हैरान हो रहा कि किधरे पौरा हो के तू आप ही अपने रूप ते मस्त होया फिरदा है, आप अपनी सुगंधी ते मस्त होया फिरदा है। फुल दे चारों पासे प्रकरमा पिया करदा है। फुल तो आप, भौरा तो आप, अपनी आप दे ऐसी लीनता, अपने आप दे ते ऐसा तो मोहित होया फिरदा है। ये एक दृष्टि है, ये एक धार्मिक दृष्टि है। जद ये मिलती है तो चारों पासे पसारा ब्रह्म ही दिखाई देंदा है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं, पानी नू वेख के मैं विस्माद अवस्था चला जाना। प्यास लगती है, पानी पींदियां जो शांति मिलती है, चैन मिलता है, शरीर नू जो आराम मिलता है। हे प्रभु, मैं दंग रह जाना। इतनी वड्डी तेरी ये दात, इतनी वड्डी तेरी ये सौगात, और इस दे च इतना तू रस पा दिता, इतना तू जीवन पा दिता। विस्माद अग्नि खेडे विडाणी। मैं विस्माद हो जाना अग्नि नू वेख के जो तरह तरह के कौतक पई कर दिए,
किधरे बड़वा अगन, किधरे दावा अगन, किधरे जठर अगन। दावा अगन जो बनस्पति दे विच है, बड़वा अगन जो सागर दे विच है, जठर अग्नि जो जीवां दे शरीर दे अंदर है। साहिब कहंदे ने मैं ते दंग हां, वख वख ये अग्नियां वख वख कौतक कर रही ने, अपने अपने ढंग नाल ये तमाशा कर रही ने। और इन्हां दा तमाशा मैं रोज पिया वेखदा। किधरे बड़वा अगन सागर नूं अंदोलित करके उन्होंने बदलों का रूप दे देंदी है। किधरे दावा अग्नि बनस्पति दे चों प्रगट होके तरह तरह के होर कौतक कर दी है। ते किधरे शरीरां दे जठर अग्नि पाचन शक्ति का काम कर दी है, जीवन देण का काम कर दी है। अग्नि दे ऐसे कौतक ते जीवन देण दे वसीले वेख के हे प्रभु मैं ते विस्माद दी दुनिया दे खो जाना। विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती विस्माद पानी। साहिब कहते ने मैं विस्मादमई अवस्था चला जाना धरती दे कौतक वेख के, धरती दी होंद नूं वेख के, इहदी कृत कर्म नूं वेख के। ते इस धरती दे उत्ते जो अनेकां खाणियां ने, अंडज जेरज सेतज उत्पुज, जो अंडियां तो पैदा हो रहे हैं, जेर तो पैदा हो रहे हैं, पसीने तो पैदा हो रहे हैं, उत्पुज खाणिए जो बनस्पति है, इन्हां खाणियां नूं वेख के भी मैं विस्मादमई अवस्था दे चला जाना। विस्माद साध लगे प्राणी, हे अकाल पुरख जीवां नूं जद स्वाद दे च लीन मैं देखदा ते स्वादां दे च ग्रसे हुए मैं देखदा, मैं ते इत्थे भी विस्माद हो जाना। हर जीव किसे न किसे रस दे पिछे दौड़ रहा है ते हर जीव दे अंदर कोई ना कोई रस जिहड़ा है वो प्रधान है। विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग। हे प्रभु जीवां दा संजोग ते जीवां दा विजोग। मनुख दा ही संजोग नहीं, मनुख दा पशुआं नाल भी संजोग है। घर दे जो गऊ है पालतू उस नाल भी कोई साडा पूर्वला संजोग है। घर दे जो कुत्ते ने उन्हां नाल भी साडा कोई संजोग है पूर्वला। घर दे जो बूटे ने फुल्लां दे चाहे फल्लां दे, इन्हां नाल भी साडा कोई पूर्वला संजोग है। मनुख नाल जो मेल, मनुख दा जो बनस्पति नाल मेल, जिहड़ी बनस्पति ज्यादा अंदोलित करे उस नाल कोई साडा संबंध है। जिहड़े पशु ज्यादा अंदोलित करन, ज्यादा कशिश दा बायस बनन, उन्हां पशुआं नाल साडा कोई संबंध रह गया है। और इसे तरीके नाल जिहड़ा मनुख ज्यादा प्रभावित करे ते जिसकी चाहत बहुत ज्यादा पैदा होवे उस नाल कोई संजोग साडा पूर्वला भी है। तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं जीवां दे तरह तरह दे मैं संजोग वेखदा, वेख के हैरान हो जाना ते संजोग दे नाल जुड़िया होया विजोग वेखदा, विछोड़ा वेखदा। मिलना है ते फिर विछड़ना है, ये भी मैनू विस्मादमई अवस्था दे च लै जांदा है। विस्माद भुख, विस्माद भोग, जीवां नूं जो भुख लगदी है ये वेख के भी मैं हैरान हो जाना। ते भुख लगे मनुख जद भोग दे च लीन होंदे ने, रस दे च लीन होंदे ने, तां उस भुख नूं वेख के ते भोग नूं वेख के हे प्रभु मैं ते समाधि लीन हो जाना। विस्माद सिफत, विस्माद साला, तेरी जिहड़ी सिफत ओ सलाह है उस दे जो रस है ते आनंद है, हे प्रभु ये वेख के भी मैं विस्माद हो जाना। विस्माद उजड़, विस्माद राह, तरह तरह की उजाड़ ते रस्ते, भटकना ते मार्ग ते चलना, चाहे ये भटकना जमीन ते होवे ते चाहे चलना जमीन ते होवे ते चाहे ये भटकना सुरत दा होवे ते सही ढंग नाल चलना मनुख दी सुरत दा होवे। साहिब कहंदे इस भटकने नूं वेख के, उस उजड़ नूं वेख के, उजाड़ नूं वेख के ते रस्तियां नूं वेख के ये भी मैं विस्मादमई अवस्था दे च लीन हो जाना। वेख विडाण रहा विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग। मैं इस विस्माद नूं वेख के आनंदमई अवस्था दे च लीन होके रस माणदा, पर यह विस्माद बुझिया जांदा है उच्चे भागां नाल, उच्ची बख्शिश नाल, उच्ची रहमत नाल।